Sharma from Ultimate Coaching Center. Today in this video, we discuss about stars and the solar system. पहेली and बुजो visited their grandparents' village during the summer break. गर्मियों की छुट्टियों में पहेली और बुजो अपने दादा दादी के घर गए. After dinner, they went on the roof of the house. डिनर करने के बाद वो घर की छत पर गए. It was a clear cloudless night. वो एक साफ रात थी. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. वो बहुत हैरान हुए आसमान में चमकते तारों को देखकर. They had never seen such a beautiful scene in their city. उन्होंने ऐसा जो सीन था कभी भी अपने शहर में नहीं देखा था. पहेली wondered why the village sky was so different from the night sky in big cities. पहेली ने वंडर किया कि जो गांव का आसमान है वो शहर के आसमान से इतना ज़्यादा साफ कैसे है. Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in big cities is rarely clear. जो उसके दादा ने उसे समझाया कि जो शहर है उसमें जो लाइट है, स्मोक है, डस्ट है, इन सब कारणों के कारण उसका जो आसमान है इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता. नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ fascinating experience at a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear. You see the entire sky dotted with countless stars. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बाकी का आसमान है सभी डॉटेड स्टार्स के साथ भरा हुआ है. Some bright and some not bright. कुछ जो इनमें से बहुत ज़्यादा चमकदार हैं और कुछ इनमें से चमकदार नहीं हैं. Observe them carefully. इन्हें ध्यान से गौर करो. Do all of them appear to twinkle? क्या इनमें से सभी जो है टिमटिमाते नजर आते हैं. Do you find any star-like object which does not twinkle? क्या इनमें से आप कोई ऐसी ऑब्जेक्ट देख सकते हो जो ट्विंकल नहीं कर रही. The objects which do not twinkle are planets. जो ऑब्जेक्ट्स नहीं टिमटिमा रहे वो planets हैं. The moon is the brightest object in the night sky. ये जो आप मून देख रहे हैं ये नाइट स्काई की सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. ये मून, स्टार्स और जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आप नाइट स्काई में देखते हैं इन सभी को celestial बॉडी ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. Are all celestial objects similar? Let us find out. क्या सभी के सभी celestial objects similar होते हैं? चलो आओ देखते हैं. The moon. Is there a chance in the shape of the moon every day? Are there days when the shape of moon appears to be perfectly round? क्या कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिनमें मून फुल राउंड दिखता है. Are there the days when the moon cannot be seen at all even if sky is clear? कुछ ऐसी भी रातें होती हैं जिनमें चांद दिखाई ही नहीं देता जबकि आसमान पूरा साफ होता है. The day on which the whole disk of moon is visible is known as full moon day. जिस दिन हम पूरा चांद गोल देख सकते हैं उसे हम फुल मून डे कहते हैं. Thereafter, every night, the size of bright part of the moon appear to become thinner and thinner. ऐसे करते करते जो चांद का चमचमाता पार्ट है वो दिन पर दिन कम होता जाता है. On the 15th day, the moon is not visible. हर 15वें दिन जो मून है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा. This day is known as the new moon day. ये जो दिन है इसको न्यू मून डे कहा जाता है. The next day only a small portion of moon appear in the sky. उससे अगले दिन सिर्फ थोड़ा सा चांद का हिस्सा आपको दिखता है. This is known as crescent moon. इस मून को crescent moon कहा जाता है. Then again the moon glows larger every day. और फिर मून जो है अपना ब्राइटर पार्ट और बड़ा करता जाता है. On the 15th day once again we get a full view of moon. और अगले 15वें दिन हम एक और फुल व्यू मून का देख सकते हैं. Let us try to understand why phases of the moon occur. अब चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मून के जो फ्रेजेस हैं ये क्यों अकर करते हैं. You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light. जैसा कि आपने चैप्टर 16 में पढ़ा है कि मून जो है अपनी खुद की लाइट नहीं देता. Whereas the sun and the other stars do. जो सन है और तारे हैं वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं. We see that moon because the sunlight falling on it gets reflected toward us. हम मून को इससे देख पाते हैं क्योंकि जो सूरज की रोशनी जो मून पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आती है. We therefore see only the part of moon from which the light of sun is reflected toward us. इसलिए जो हम मून देखते हैं वो सिर्फ उतना ही मून हम देख पाते हैं जो कि सन की सनलाइट को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है.
आगे हम बात करेंगे द मून सरफेस। द मून इज़ अ फैस्किनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स। मून जो है ये स्टोरी में या कहानियों में आपने सुना ही होगा। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। बट जब एस्ट्रोनॉट्स मून पर उतरे तो उन्होंने देखा कि जो चांद की जो सतह है वो बहुत ही डस्टी मीन्स धूल से भरी हुई है। देयर आर मैनी क्रैटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। यहाँ पे बहुत सारे क्रैटर्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं गड्ढे गड्ढे, ये बहुत डिफरेंट साइजेस में थे, जैसे ये बड़ा है और ये छोटा। इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। ये इसमें जो है कुछ स्टीप और हाई माउंटेन्स, मतलब कि इसमें पहाड़ भी बहुत बड़े बड़े थे। सम ऑफ दीज आर हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन अर्थ। इनमें से कुछ तो इतने ज़्यादा बड़े थे जो कि अर्थ के हाईएस्ट माउंटेन से भी ज़्यादा बड़े चले गए थे। अब इससे आगे वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिलेशंस। Look at the sky for some time. Can you see the some stars forming group with shapes like those in figure 17.11? रात को आसमान की तरफ देखिए। क्या आप कुछ ऐसे तारों के ग्रुप को देख सकते हैं कुछ ऐसे तारों के ग्रुप को देख सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइज्ड शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। जो तारों का वो ग्रुप जो एक पहचान योग एक शेप बनाता है उसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ग्रेट बियर, ओरियन, कैसियोपिया एंड लियो मेजर। इनमें से जो मेन जो आप रोज़ ही देख सकते हैं वो है ग्रेट बियर और ओरियन। ग्रेट बियर के बारे में आपके एल्डर्स को भी पता होगा, जैसे आप अपने फादर या अपने मदर से पूछ सकते हैं कि सप्तऋषि जो है आसमान में दिखता है कि नहीं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट बियर है इसको आप सप्तऋषि भी कह सकते हैं, बिग डिपर भी कह सकते हैं और उर्सा मेजर भी बोल सकते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टिलेशन। ये वाली कॉन्स्टिलेशन में है टोटल 7 स्टार्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट अपीयर लाइक अ बिग लैडल और क्वेश्चन मार्क। ये आसमान में एक बड़े क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है। देयर आर 3 स्टार्स इन हैंडल ऑफ लैडल एंड 4 इन इट्स बाउल। इसमें जो 3 स्टार्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक चमचे की तरह भी दिख रहा है। इसमें जो चमचे का हैंडल है उसमें 3 स्टार्स हैं और जो चमचे का बाउल है उसमें 4 स्टार्स हैं। इससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ओरियन के बारे में। ओरियन इज़ अनदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन लेट इवनिंग्स। ओरियन भी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है। ये आपको विंटर में दिखती है लेट इवनिंग्स में, मतलब थोड़ी रात को। जैसा कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप एक बार आसमान में जाके ज़रूर गौर कीजिए कि आपको ऐसी कोई कॉन्स्टिलेशन दिखती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई। ये आसमान में देखी गई सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिलेशन है। इट ऑल्सो है 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। इसमें भी 7 और 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं। ओरियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। ओरियन जो है एक हंटर भी कहा जाता है। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब आप देख सकते हैं ये वाले 3 स्टार्स हैं, ये शिकारी की बेल्ट जैसे हैं, और ये जो 4 बाकी के स्टार्स हैं ये उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे बैकग्राउंड में एक लाइट सी इमेज दिखाई गई है जिसमें एक शिकारी है। ये जो 3 स्टार्स हैं ये इसकी बेल्ट पे हैं। ये जो अपर पार्ट है उसमें ये 3 स्टार्स हैं और जो लोअर पार्ट है उसमें ये 3 स्टार्स हैं। अब इससे आगे हम बात करेंगे द सोलर सिस्टम। द सन एंड द कैलेस्ट्रियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। सूरज और प्लैनेट्स, स्टार्स, जैसे कि हमने बात की थी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़, मून, स्टार्स वगैरह सभी जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स। इसमें कई तरह की बॉडीज़ पाई जाती हैं जैसे प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन between the sun and these objects keep them revolving around it। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और इन बॉडीज़ को उनके सन के अराउंड घूमने के लिए सन के अराउंड घूमती रहती हैं। द अर्थ एज यू नो
ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। जिस धरती पे हम रहते हैं वो भी सन के आसपास घूमती है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक सोलर सिस्टम हमें दिया गया है और ये जो ये धुंधला सा पार्ट है, इसको ये है और एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स और वगैरह। अब आगे हम पढ़ेंगे द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स जो हैं आसमान में स्टार्स की तरह दिखते हैं बट उनकी कोई अपनी लाइट नहीं होती। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स? क्या आप बता सकते हैं आसमान में देख के कि कौन से प्लैनेट्स और कौन से स्टार? द सिंपल मैटर ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार ट्विंकल वेयर एज प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल। इनको पहचानने का सबसे ज़्यादा इजी तरीका यही है कि आसमान में जब आप कोई टिमटिमाती चीज़ देखेंगे तो वो तारा होगी, अगर वो चीज़ टिमटिमा नहीं रही तो वो एक प्लैनेट होगी। कीप चेंजिंग ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं स्टार्स के अराउंड। जैसे कि आपको पता होगा कि सन भी जो है एक स्टार है। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हर प्लैनेट का अपना एक रास्ता होता है जिसमें वो सन के अराउंड घूमता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मर्क्यूरी है, इसका ये छोटा सा पाथ है। वीनस है, इसका ये पाथ है। हमारी अर्थ जिस पर हम रहते हैं, इसका ये पाथ है। ये जो सभी हैं अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं। ये इस ऑर्बिट को हम एक्सिस बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे ये अर्थ है, ये एक बार जब ये पूरा चक्कर काट लेगी तो इस जो चक्कर काटने में इसको जो टाइम लगे उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम सन। जो उसके घूमने का जो टाइम ऑफ पीरियड है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, वो उतना ही बढ़ता जाएगा जितना कि प्लैनेट वो सन से दूर होगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।